नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक महिला रक्षणा वेदिके बीदर SC/ST कम्युनिटी और क्रिश्चियन समुदाय की ओर से बीदर से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को कांग्रेस टिकट देने की मांग को लेकर की गई प्रेस मीट। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डीए मामले में जयललिता के आभूषण तमिलनाडु को सौंपने की कार्यवाही पर लगा दी रोक। बीआरएस को एक और झटका, पूर्व विधानसभा सदस्य कोनीरो कोनपा होंगे कांग्रेस में शामिल। राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से रायबरेली से चुनावी राजनीति में प्रवेश करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। टीएमसी के राज में माताओं बहनों पर हुआ अत्याचार, संदेश काले कांड पर गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब समाचार विस्तार से। आज बुधवार 6 मार्च को बीदर के शिवा इंटरनेशनल होटल में कर्नाटक महिला रक्षणा वेदिके बीदर SC/ST कम्युनिटी और क्रिश्चियन समुदाय की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीदर से माइनॉरिटी को टिकट देने की मांग करते हुए एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें बीदर लोकसभा सीट से बीदर के प्रसिद्ध व्यक्ति एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को कांग्रेस टिकट देने की मांग की गई। इस अवसर पर येसुदास सुधाकर, जयराज ओस्मनी, कुमार कोडेकर, सतीश सोयल, देवराज गौड़ा, पेन्नानी गौड़ा, लक्ष्मी दंडी, इमानुएल, मफदाक नल्ली, वाहिद, लखन, अमरीश कुद्रे, सुधाकर कोटे, सुमन चिद्री के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। बता दें कि पिछले कई दिनों से बीदर लोकसभा सीट से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को कांग्रेस टिकट देने के जिले के हर वर्ग की ओर से मांग की जा रही है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿದವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಜನರು ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂಬಂಥವ್ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾಯಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಮಾಜದವರು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಸಲ ಅವರನ್ನೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ। ಮಹಿಳಾ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪೆನಿನಾ ಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಂದನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡುವ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಸಿರು ಆಗುವಂತ ಬೀದರ್ ಇದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿಯವರು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೋಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಈ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ರೈತರೆಲ್ಲರಾಗಿರಲಿ, ಬಂದಿಂತ ಮೊನ್ನೆ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮೃದುವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳುವಂತ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ
ಸಹಪಾಠಿಯವರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇದು 40 ವರ್ಷದ ಎಂಬಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, 20 ವರ್ಷಕ್ಕಂಬಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತೋ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತೋ, ಅವಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅದ. ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಹ ಅತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಎಂಬಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದ್ರು, ಅದು ಸಹ ರೈತರಿಗೆ ಹಗಲು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಯಾವುದು ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಗಂಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂರು ರೈತರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಂಬಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಭಗವಂತ ಕೋಬ ಬಂದೇನು ಹಿಡಿದು 100% ಇಂದ 10% ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಏನ್ ಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 100% ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಗೆದ್ದಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಎಂಬಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಮಾನ್ವೇಲ್ ಮಂದಕನಹಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈನಾರಿಟಿನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ 3ನೇ ಸಲ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೈನಾರಿಟಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತನೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಂತ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ SC ರಿಸರ್ವ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ರು ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಯಾಕೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಮೈನಾರಿಟಿಲಿಂದೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ सबसे अहम बात तो यह है कि आज शहर बीदर सालों में पहली मर्तबा ऐसा मौका मिलने जा रहा है जो पार्लियामेंट कैंडिडेट को लेकर आज जो मुहिम चल रही है, इसका मेन मकसद यही है कि माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए। माइनॉरिटी के टिकट को लोग जो है ना डिवाइड करके जो है ना अपने लोग अपने आप इस्तेमाल कर रहे थे। उसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ के दलित बैकवर्ड माइनॉरिटीज के लोग एकजुट होकर जो है ना ये अयाज खान साहब के लिए जो है ना मुहिम चला रहे हैं। और ये मुहिम इसलिए चलाई जा रही है, इससे हटकर भी और भी कैंडिडेट्स हैं जो भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, वो अपने एप्लीकेशन दे चुके हैं। मगर इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि ऐसा शख्स चुना जाए जिससे लोगों को सहूलत मिले, लोगों को फैसिलिटीज मिले। शहर अंदर अगर पूरे के पूरे माइनॉरिटी होकर वोट डालते हैं तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा दावा है, चैलेंज है हमारा। अगर माइनॉरिटी साथ नाइंसाफी होती है तो आगे का हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख चुके हैं ईश्वर खंडे को टिकट दिया गया, ईश्वर खंडे हार चुके हैं। धर्म सिंह साहब एक बार माइनॉरिटी के वोट लेके जीते थे, दूसरी बार मर्तबा हार चुके हैं। इसकी वजह, इसका कारण ये है यहाँ के जो बीजेपी नुमाइंदे हैं, बीजेपी के वोटर्स हैं, वो वन वे बीजेपी को वोट डालते हैं। कांग्रेस पार्टी में है वो हम भरोसा नहीं उनका, हमारे को बढ़ने पड़ता हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पार्टी वालों की जिम्मेदारी है। हम एक संगठनों की तरफ से बैठे, संगठन के जिम्मेदार लोग हैं हम। संगठन बोले तो ऐसा होता है बेसिक लेवल से काम करते जाते हैं और हर वो नुमाइंदे के पास, हर वो शख्स के पास जाकर जो है ना उनकी परेशानी, उनकी मुसीबत क्या है हम लोग काम करने वाले। हमको इसका अंदाजा है आने वाले दिनों में हम जो है डिस्ट्रिक्ट से हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र से मोहम्मद अयाज खान साहब को अगर टिकट दिया जाता है तो भारी बहुमत से जिताकर इनको जो है ना पार्लियामेंट भेजने का हम पूरा मुसम्मत इरादा करते हैं, पूरा वादे के साथ में ये तय कर चुके हैं, बराबर करके बताएंगे इंशाअल्लाह। ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
2024 ಲೋಕಸಭೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೂ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಅಂತ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾರ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ವಾದ ಅದ. ಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರೇ ಆದಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು 2 ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಐಸ್ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನ ಏನು ನೋಡಲ್ದೇನೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೆ ನಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೈ. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता के सोने और हीरे के आभूषणों को पड़ोसी राज्य सरकार को सौंपने की प्रक्रिया पर 26 मार्च तक रोक लगा दी है. मंगलवार को जयललिता की भतीजी जय दीपा की याचिका पर न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह रोक लगा दी. दिवंगत अन्य प्रमुख नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कीमती सामान जब्त कर लिया गया था और एक विशेष अदालत द्वारा बुधवार से तमिलनाडु के अधिकारियों को सौंपा जाना था. याचिकाकर्ता ने 12 जुलाई 2023 के विशेष अदालत के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि जयललिता को बरी माना जाना चाहिए क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ कार्यवाही रोक दी थी. बीआरएस पार्टी को धक्के पर धक्के मिल रहे हैं. पार्टी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं. अभी हाल ही में बीआरएस बीएसपी गठबंधन को लेकर नाराजगी का असर देखने को मिला है. ऐसी खबरें हैं कि आदिलाबाद सरपुर के पूर्व विधानसभा सदस्य कोनीरो कोनपा ने बीआरएस के इस्तीफे देने का फैसला किया है. कोनीरो कोनपा के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है. बता दें कि हाल के दिनों में बीआरएस के कई नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं. वहीं कुछ सांसद भी बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हुए हैं. भाजपा बीआरएस गठबंधन की घोषणा के तुरंत बाद कोनीरो कोनपा ने अपने इस्तीफे की घोषणा की. संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में बीआरएस पार्टी की ओर से एक रैली निकाली गई. यह रैली आईबी गेस्ट हाउस से आरडीओ कार्यालय तक निकाली गई. इस रैली में बीआरएस विधायक के माणिकराव और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे. इस अवसर पर कहा गया कि कांग्रेस ने जो 6 गारंटी का वादा किया वो अभी तक पूरे नहीं हुए और एलआरएस अभी तक माफ नहीं हुई. इस अवसर पर आरडीओ को एक ज्ञापन भी दिया गया. जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्ला की रिपोर्ट. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఎల్ఆర్ఎస్ అనే దోచుకునే ప్రయత్నంలో ప్రజలను మోసం చేసి మళ్ళీ అమలు పరుస్తామని చెప్పడం చాలా సిగ్గుచేటు. గతం ప్రభుత్వంలో ఎల్ఆర్ఎస్ 2020లో గత ప్రభుత్వం ఈ యొక్క ఎల్ఆర్ఎస్ ను అమలు చేస్తే మేము వచ్చిన తర్వాత ఫ్రీ చేస్తామన్నారు. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు ఫ్రీ చేయట్లేదు? ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ వసూలు చేస్తా ఉన్నారు? ఇది ఇంచుమించు 25,44,000 మందికి నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీని వెంటనే మీరు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం దాన్ని రద్దు చేయాలని, అప్పుడు మీరు ఫ్రీగా చేస్తామన్నారు. ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు ఫ్రీగా చేయట్లేదని మేము అడుగుతా ఉన్నాం బీఆర్ఎస్ పార్టీ. మరి ఈరోజు నిజంగా ఇన్ని అబద్ధాల కొరకు నిజంగా అన్ని కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా చూస్తా ఉన్నారు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎన్ని మాటలు ఆడిర్రు, ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పిర్రు. ఈరోజు మాటలు వచ్చి మరి ప్రభుత్వానికి వచ్చిన తర్వాత మరి సీఎంతో పాటు అందరూ కూడా ఒక 5-6 మంది కూడా అందరూ కూడా అబద్ధాలు చెప్పి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి వచ్చిన తర్వాత అబద్ధాల మీద బతుకుతా ఉన్నారు. కాబట్టి వీరందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచించాలని. भारत के आर्थिक विकास को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न केवल भारत के आर्थिक विकास को बड़ा समर्थन दिया बल्कि इस दिशा में सरकार के कामों को भी सराहा. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पूरी दुनिया भारत को आज के वक्त में पहचान रही है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था पर फल फूल रहा है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा पूरी दुनिया भारत को पहचान रही है. जब भी हम देश से बाहर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि भारत कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है और ये सब तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है. हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए. दरअसल वित्तीय विवाद को लेकर केरल और केंद्र के बीच
खींचातान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में संदेशखाली की महिलाओं से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं गुस्से में हैं और संदेशखाली में शुरू हुआ तूफान केवल द्वीप तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम बंगाल के हर कोने तक पहुंचेगा। ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल सरकार एक अपराधी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव मैदान में होंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस बार अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं खबर ये भी आ रही है कि इस लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी के लिए यह पहला मौका होगा जब वह लोकसभा चुनाव लड़ रही होंगी। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने के साथ ही चुनावी राजनीति में अपना पदार्पण करने जा रही है। आपको बता दें कि रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी की मां सोनिया गांधी द्वारा वहां से चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद खाली हुई है। अमेठी लोकसभा सीट का सियासी इतिहास बेहद रोमांचक है। 2019 से पहले जब भी अमेठी को सियासत के फ्रेम से देखने की कोशिश की जाती थी तो उस फ्रेम में ज्यादातर समय कांग्रेस के उम्मीदवार ही दिखते थे, लेकिन 2019 के आम चुनाव के बाद फ्रेम भी बदला और उसके अंदर की तस्वीर भी, और अब नए फ्रेम में बीजेपी दिखती है। ये वही अमेठी है जिसे एक समय पर कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था, साथ ही इस दशकों से गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा, और ये वही अमेठी है जहां एक समय पर उस समय के सांसद राहुल गांधी के लापता होने के पोस्टर तक चस्पा किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संदेशखाली में महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचारों को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर गरजे। पीएम मोदी ने कहा, इसी धरती पर टीएमसी के राज में माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ है। संदेशखाली में जो कुछ भी हुआ इस पर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहाँ की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल की सरकार आरोपी को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बड़ी घोषणा की है। अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यह घोषणा की है जिसके मुताबिक अब खेलो इंडिया के खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी है। अपनी पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने लिखा, खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुरूप मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के विजन के तहत जमीनी स्तर पर प्रतिभा को आगे बढ़ाने का मौका देने और खेल को आकर्षक करियर विकल्प में बदलने के लिए खेलो इंडिया के खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार।
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण को बाधित करने के लिए विधानसभा से 7 भाजपा विधायकों के सरकार ने निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता को पिछले महीने विधानसभा से निलंबन किया गया था। सदन की विशेष अधिकार समिति में मामला लंबित रहने तक उन्हें सस्पेंड किया गया था। विधायकों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथ न हो तो उसका जीवन काफी मुश्किल हो जाता है। कई केसेस में तो लोग पैरों को अपना हाथ बना लेते हैं, लेकिन अब ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। सर गंगाराम ने 45 साल के राजकुमार के दोनों हाथ लगा दिए, जिससे उसकी जिंदगी ही बदल गई। ये हादसा तब हुआ जब राजकुमार नांगलोई रेलवे ट्रैक के पास अपनी साइकिल से गुजर रहे थे। तभी साइकिल का संतुलन बिगड़ा और वो रेलवे ट्रैक्स पर गिर पड़े। वहां से ट्रेन गुजरी और राजकुमार के दोनों हाथ कट गए। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्हें कृत्रिम हाथ लगाए गए, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद राजकुमार का लंबा इंतजार शुरू हुआ। हाथों के ट्रांसप्लांट की परमिशन दिल्ली में किसी अस्पताल को अभी तक नहीं मिली थी। हाल ही में सर गंगाराम अस्पताल को तमाम प्रोटोकॉल पूरे करने के बाद ये परमिशन मिली। सर्जरी में 12 घंटे लगे। 20 से ज्यादा एक्सपर्ट ने ये काम किया। 6 हफ्तों तक अस्पताल में रहने के बाद राजकुमार अपने घर जा सके। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक महिला रक्षणा वेदी के बीदर SC/ST कम्युनिटी और क्रिश्चियन समुदाय की ओर से बीदर से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को कांग्रेस टिकट देने की मांग को लेकर की गई प्रेसमीट। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डीए मामले में जयललिता के आभूषण तमिलनाडु को सौंपने की कार्यवाही पर लगा दी रोक। बीआरएस को एक और झटका। पूर्व विधानसभा सदस्य कोनीरो कोनपा होंगे कांग्रेस में शामिल। राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से रायबरेली से चुनावी राजनीति में प्रवेश करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। टीएमसी के राज में माताओं बहनों पर हुआ अत्याचार। संदेशखाली कांड पर कचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।